हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस हम लोग के पास कभी आते हैं कि क्या साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर हो सकते हैं, क्या टेन थीटा कॉट थीटा के बराबर हो सकते हैं, या फिर कॉसेक थीटा सेक थीटा के बराबर हो सकते हैं, या फिर हम इसी के रेसिप्रोकल देखें या इसी के रिवर्स देखें तो क्या ये इसके रिवर्स भी ट्रू है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग इसी क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं और इसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो हम लोग को मिलने जा रहा है कि अगर इक्वल होते हैं तो किस कंडीशन में, और अगर इक्वल नहीं होते हैं तो फिर क्यों नहीं। सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टूडेंट। मैं राहुल कुमार पांडे, आप लोग के अपने YouTube चैनल जियो फाउंडेशन पे स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। डियर स्टूडेंट, in the previous standard you have studied about the angles, and in that angles you have studied about the two very familiar types of angles. The one is complementary angles and the second one is supplementary angles. So now let us see what do we mean by, or what is complementary angles, or what are complementary angles. Okay, so complementary angles, as you know everyone, sum of two angles, if the sum of two angles will be 90 degree, then we can say these two angles are complement of each other. And if the sum of two angles will be 180 degree, then we can say they are the supplement of each other. For example, मैं आप लोगों को यहाँ पे छोटा सा एक एग्जांपल दे दूं कि यहाँ पे आपका 60 डिग्री है एंड 30 डिग्री है. So the sum of two angles is 90 degree. So we can say these two are the complement of each other, right or not? If we can say this is 45, this is 45, okay, and this is also 45. So the sum of two angles is 90 degree. So we can say these two are complement of each other. Similarly, if we say 180 degree, so we can say these two, the sum of these two angles are 180 degrees, so we can say these two are the supplement of each other. So this is the story, or these are the story behind supplementary and complementary. But dear student, in this session, in this topic, we will only focus on what complementary angles. So complementary angles you have known. What do you mean by that? दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो जाए, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो जाए तो हम इन दोनों एंगल्स को क्या कहेंगे, एक दूसरे का कंप्लीमेंट कहेंगे. तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी रिलेशन हमारे ट्रिग्नोमेट्री में किस तरह से है, चलिए हम लोग देखते हैं. डियर स्टूडेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स. सो कंप्लीमेंट्री एंगल्स वी नो. नाउ as we know, there are 6 trigonometric ratios: sin theta, cos theta, tan theta, sec theta, cosec theta, and cot theta. So we have 6 trigonometric ratios. Now what are the relationship according to the complementary angles between them? मीन्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में क्या रिलेशंस है जब हम कंप्लीमेंट्री एंगल्स के केस में लेकर के आते हैं. तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं कि जो सबसे पहला जो आपको रिलेशन मिलेगा वो है आपका इफ साइन 90 माइनस थीटा, इफ वी हैव tan 90 minus theta, that is 90, that means what, 90 degree, okay. So 90 minus theta, and we have sec 90 degree minus theta, okay. So equals to what? Now sin 90 degree minus theta equals to, we can write here, cos theta. Tan 90 degree minus theta equals to what? Cot theta. And sec 90 degree minus theta is equals to what? Cosec theta. Similarly, we can say in the reverse way, cos 90 degree minus theta equals to what? Sin theta. Cot 90 degree minus theta
इक्वल्स टू व्हाट, tan थीटा, एंड cosec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स sec theta. So dear student, as you can see here, sin theta, sin equals cos, tan equals cot, sec equals cosec, right or not? So dear student, मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन पूछा कि क्या sin जो है वो cos के इक्वल हो सकते हैं, tan cot के इक्वल हो सकते हैं, cosec sec के इक्वल हो सकते हैं। तो इसका आंसर जो है बच्चे आपका इक्वल हो सकते हैं, बट वी हैव इन द केस ऑफ सम स्पेसिफिक कंडीशन। सो व्हाट विल बी द स्पेसिफिक कंडीशन, वो कौन सा कंडीशन होगा, तो वो जो कंडीशन होगा वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स का कंडीशन होगा। कंप्लीमेंट्री एंगल्स मींस व्हाट, सो डियर स्टूडेंट, दिस इज थीटा एंड दिस इज 90 माइनस थीटा। सो व्हाट, अगर हमारे पास कोई एंगल है और एक और एंगल है हमारे पास 90 डिग्री माइनस थीटा, ओके, दो एंगल है। अब इन दोनों एंगल का सम अगर हम निकालें तो कितने आ जाएंगे, इन दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है, तो 90 थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, दिस विल कैंसल आउट, सो दिस बिकम्स व्हाट, 90 डिग्री। सो वी कैन से दिस टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के क्या है, कंप्लीमेंट है। तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ये इक्वल हो सकते हैं, तो बिल्कुल इक्वल हो सकते हैं, लेकिन वो किस केस में इक्वल हो सकते हैं, तो कंप्लीमेंट वाले केस में हो सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीमेंट वाले केस हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आप लोग को ये जो इक्वलिटी है, ये जो आपका इक्वलिटी का साइन है, ये हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए पढ़ रहे हैं, दैट मींस एक्यूट एंगल्स के लिए पढ़ रहे हैं, ओके। इसी तरह की सिमिलर सिचुएशन जो है वो इसी तरह के आपके कुछ डिफरेंट वैल्यूज भी मिलते हैं, सेम वैल्यूज भी मिल सकता है, डिफरेंट वैल्यूज भी मिल सकता है। जैसे यहाँ पे साइन का कॉस मिला है, तो साइन का जो है वो साइन भी मिल सकते हैं आपके नेगेटिव में या पॉजिटिव में। तो वो आपके कंडीशंस पे डिपेंड करेंगे, कौन से कंडीशन हम किस एंगल के लिए ले रहे हैं, कौन सा एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, किस टाइप के एंगल्स है। इस तरह के क्वेश्चन का जो हम लोग आंसर करेंगे बच्चों, वो आप लोग हायर स्टैंडर्ड में करोगे। दैट मीन्स 11th स्टैंडर्ड में हम लोग को वहां पे सीखना रहेगा कि जब मोर देन 90 डिग्री एंगल का केस आएगा, दैट मीन्स आपका जब एक्यूट एंगल से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब जो है वो इस सिचुएशंस में क्या डिफरेंट या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलता है, ओके। तो हम लोग कई सारे केस के लिए देखना होता है, बट स्टैंडर्ड 10 में जो है हम लोग बच्चों, हम लोग बाउंड है कि एक्यूट एंगल्स के लिए ही पढ़ रहे हैं। वैसे हम लोग जो भी सिचुएशन देख रहे हैं वो और भी कई सारे एंगल्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल या कई सारे एंगल्स के लिए भी ट्रू होते हैं, वैलिड है, लेकिन वो हम लोग 10th में नहीं पढ़ रहे हैं, वो हम लोग को हाई क्लासेस में पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चे। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो है आप जो ये लिखा गया है, इनको हम वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, दैट मीन्स ये ट्रू है या नहीं है, बस ऐसे ही जो है वो लिख दिया गया, तो इनको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं बच्चों। वेरीफाई करने के लिए हमें फिर से जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल के पास चलना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल के पास चलना पड़ेगा। अगर हम लोग को ये सारे जो सिचुएशंस हैं, ये 3 इधर से आए, 3 इधर से आए, टोटल 6 रिलेशंस हम लोग को मिल रहे हैं यहाँ से। तो अगर मैं 3 रिलेशंस को सॉल्व कर देता हूँ, दैट मींस प्रूफ कर देते हैं, तो बाकी के 3 रिलेशंस तो खुद ब खुद जो है वो आप लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इनको कैसे वेरीफाई करें, तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग को चलना पड़ेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल के पास। अब राइट एंगल ट्रायंगल ही हमारी मदद करेगा इसको प्रूफ करने के लिए, ओके, यही हमारा मदद करेगा, क्योंकि हम लोग जो भी यहाँ पे कंडीशन देख रहे हैं वो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, और इसी में हम लोग एक्यूट एंगल्स की बात कर रहे हैं। तो बच्चे आई हैव टेकन हियर वन ट्रायंगल, right angle triangle, one right angle triangle in which, so we will write here, मैं यहाँ पे वेरीफाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। So in triangle, in the right triangle ABC, जिसमें आपका B क्या है, एंगल B क्या है, 90 डिग्री, ओके। Now let's say this is थीटा, ओके, दिस इज थीटा। सो डियर स्टूडेंट, अब देखो किसी भी एंगल्स, किसी भी ट्रायंगल्स में जो है तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो तीनों एंगल का सम आपका 180 डिग्री होते हैं, राइट और नॉट, 180 डिग्री। अभी बी जो है वो आपका क्या है, बी आपका 90 डिग्री है। तो हम यूं कह सकते हैं
कि बाकी के जो एंगल्स बचे ये इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, राइट और नॉट। ये इन दोनों एंगल का सम कितने हो गए 90 डिग्री हो गया। देखिए तो बच्चे अभी जस्ट आपको बताया कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है। कंप्लीमेंट्री एंगल जो है वो अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो गया तो एक दूसरे को हम क्या कह देते हैं कंप्लीमेंट कर देते हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि एंगल ए प्लस एंगल सी की जो वैल्यू है मींस इन दोनों को हम सम किए हैं तो कितने आ रहे हैं 90 डिग्री आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे का क्या है कंप्लीमेंट है, राइट, एक दूसरे के क्या है कंप्लीमेंट है। तो हम लोग जो है फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी क्या करेंगे बच्चे कि यहाँ पे जो है आपका हम अगर ए की वैल्यू जो है वो थीटा मान लें, मैंने आपको बताया था कि ग्रीक लेटर है, तो ए की वैल्यू जो है वो आपका थीटा मान लें, तो यहाँ पे एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एंगल सी की वैल्यू लेट से एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये जो एंगल आपको निकला बच्चे वो क्या निकला 90 डिग्री माइनस थीटा। ये एंगल आपको निकला है 90 डिग्री माइनस थीटा। सो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए कंप्लीमेंट हो गए। अब बच्चे आप लोगों को ये भी बताया गया था कि इफ वी कंसीडरिंग दिस एंगल एक्चुअली वी विल कैलकुलेट फॉर द 90 डिग्री माइनस थीटा मींस फॉर दिस एंगल। ओके, हम लोग किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, अगर हमें इन चीजों को प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, अगर इनको प्रूफ कर दिए तो ये भी प्रूफ हो जाएगा। तो अगर हम इनको प्रूफ करना चाहते हैं तो हमें जो है इस एंगल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इस एंगल की वैल्यू किस एंगल के रिस्पेक्ट में, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में। तो आपको जो है बच्चे अगर आप लोग ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूं। आप जो भी पार्ट्स हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आप जो है वो देख सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना मत भूलिए बच्चों, उस पे जो है वो आपके मैं कुछ प्लान कर रहा हूं तो बिल्कुल जो है वो उससे जुड़ना मत भूलिए। उसका भी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, उनसे भी आप जुड़िए, मैं उस पर क्वेश्चन जो है वो अपडेट करते रहता हूँ और उसके लिए भी कुछ प्लानिंग है। तो आप लोग की मदद से, आप लोग की हेल्प से जो है, आप लोग के सपोर्ट से बिल्कुल हम लोग एक अच्छा जो है वो फैमिली क्रिएट करेंगे और फैमिली जोड़ना बहुत जरूरी होता है बच्चे। तो यहाँ पे क्या है कि 90 डिग्री माइनस थीटा हम लोग इस एंगल की वैल्यू निकालेंगे इस एंगल के रिस्पेक्ट में। ओके, सो नाउ एज वी हैव सेड और एज वी नो दैट if we want to find, if we calculate to find the value of for this angle, इस एंगल के लिए अगर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, देखिए ये तो इस 90 डिग्री के सामने दैट मींस साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल्स दैट विल बी हाइपोटेन्यूज, ये तो आपका फिक्स हो गया, राइट और नॉट। लेकिन आपको बताया गया था बच्चे कि इस एंगल के लिए दैट मींस साइड अपोजिट टू रेफरेंस एंगल, साइड अपोजिट टू रेफरेंस एंगल दैट विल बी परपेंडिकुलर and adjacent side to the reference angle that will be base। तो हम लोग अगर इस एंगल के लिए ले रहे हैं तो ये जो इस एंगल के लिए ये क्या हो गया अपोजिट साइड हो गया, दैट मींस ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, ये आपका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। मैं इसको कैपिटल से डिनोट कर देता हूं, ठीक, बेस हो जाएगा। आर यू गेटिंग? तो अब बच्चे हम लोग क्या करते हैं कि बारी बारी से हम लोग यहाँ पे इस एंगल के लिए निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस एंगल के लिए निकालेंगे। ओके, तो मैं पहले इस एंगल के लिए निकाल लेता हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं हम लोग, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है आपका P अपॉन H, राइट। तो P अपॉन H, अब P अपॉन H का मतलब क्या हुआ, P अपॉन H का मतलब हुआ आपका AB अपॉन AC, ठीक। ठीक उसी तरह से मैं निकाल लेता हूं cos 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका मतलब होता है B अपॉन H। तो B इक्वल्स टू आपका B कौन सा है, बेस कौन सा है BC, तो BC अपॉन AC। tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू आपका P अपॉन B। तो P कितना, P आपका AB है, राइट, AB है और ये आपका BC। ओके, नाउ ये हम 90 डिग्री माइनस थीटा के निकाले। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ इफ वी कैलकुलेट फॉर दिस एंगल, इस एंगल के लिए यहां पे मैं लिख देता हूं फोर एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस थीटा। यहां पे मैं लिखता हूं फोर एंगल A दैट मीन्स थीटा,
ओके नाउ अब इनके लिए हम लोग निकालते हैं बच्चों, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P अपॉन एच होता है, तो P अपॉन एच, अब इस एंगल के लिए P कौन सा होगा, ये BC होगा, ठीक, BC, तो BC अपॉन यहाँ पे AC हो गया, cos थीटा इक्वल्स टू B अपॉन एच होते हैं, तो B अपॉन एच, इसके लिए B कौन सा हो जाएगा, तो AB अपॉन AC, cot थीटा निकालिए, तो P अपॉन B मीन्स P कौन सा, AB अपॉन BC, ठीक। Now dear student, if you see these two results, अगर आप इन दोनों रिजल्ट्स को देखें तो आप कंपैरिजन कीजिए, कंपेयर कीजिए ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और ये कॉस थीटा की वैल्यू। आप देखो यहाँ ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू देखिए आप यहाँ पे, अगर हम देखें कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आई है, AB अपॉन AC, और यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, AB अपॉन AC। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, बोथ साइड्स इक्वल हो जाएंगे, राइट और नॉट, क्योंकि द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, तो यहाँ पे जो है ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग के पास जो फर्स्ट रिजल्ट आ गया बच्चे, वेरीफाई हो गया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो क्या होते हैं, कॉस थीटा होते हैं, ये हम लोग ने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस थीटा BC अपॉन AC, और यहाँ पे देखो साइन थीटा की वैल्यू BC अपॉन AC, तो यहाँ पे जो है वो रेसिप्रोकल, दैट मींस ये वाले ट्रू हो गए, चीजें क्लियर हो रही है। अब यहाँ पे देख लो आप tan 90 डिग्री माइनस थीटा AB अपॉन AC, और यहाँ पे cot थीटा इक्वल्स टू आपका AB अपॉन BC, यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस थीटा कितना आया, AB अपॉन BC, तो ये वाला करेक्ट हुआ। अब हम लोग को क्या निकालना है, सेक और कॉसेक, है ना, सेक और कॉसेक, तो सेक और कॉसेक निकाल लीजिए। सेक और कॉसेक के लिए मैं निकालता हूं यहाँ पे मैं, तो पहले तो मैं इसको लिख दूं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा, हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं सेक, तो सेक थीटा कितना होता है, तो H अपॉन B, H कौन सा है, AC है, B कौन सा है, थीटा के लिए AB, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालोगे, साइन कॉस, कॉट टैन, यहाँ पे कॉसेक निकालो, कॉसेक थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा, तो H अपॉन P मींस AC अपॉन व्हाट, BC हो जाएगा। यहाँ पे निकालो आप सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा H अपॉन व्हाट, B। अब H तो आपका फिक्स है, AC हो जाएगा। अच्छा B कौन सा होगा, तो B इस एंगल के लिए B आपका ये वाला होगा, दैट मींस BC होगा, BC, ठीक है। ठीक उसी तरह से आप सिमिलरली क्या करो, मैं अब इसके आगे जो है वो आप लोग पे छोड़ता हूँ। देखिए बच्चों, हम लोग को बस इससे रिजल्ट था, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देखो आप सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना है, AC अपॉन BC, और यहाँ पे कॉसेक थीटा इक्वल्स टू कितना है, AC अपॉन BC, मींस दोनों की वैल्यू हम लोग की सेम आ गई है, दैट मींस दिस टू आर इक्वल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। तो बातें समझ में आई बच्चों, आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे कंप्लीमेंट्री एंगल वाले केस में टी रेशियो जो है वो किस तरह से इक्वल हो रहे हैं। मीन्स इक्वल तो होंगे लेकिन उसके कुछ तो स्पेशल कंडीशन होंगे, और वो स्पेशल कंडीशन कौन सा है बच्चे, तो वो स्पेशल कंडीशन है वो आपका कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब हुआ कि एक एंगल थीटा है तो दूसरे एंगल जो है वो आपका 90 माइनस थीटे होंगे। मीन्स एक एंगल की वैल्यू हम दूसरे एंगल के रिस्पेक्ट में अगर निकालेंगे तो आपका वो इक्वल हो जाएंगे, गॉट इट। लेकिन वो एक स्पेसिफिक केस के लिए, मींस साइन का वैल्यू जो कॉस के लिए आएगा, tan की वैल्यू कॉट में आएगी, सेक की वैल्यू कॉसेक में आएगी। आई होप आप लोग क्लियर हो गया बच्चे। सो नाउ we come to the some questions related to this topic. So dear student, now we come to some problems पे आने के पहले बच्चों, जैसा कि मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं कि हम लोग यहाँ पे जो भी केस पढ़ रहे हैं वो आपका एक्यूट एंगल्स के लिए पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स आपका 0 से 90 डिग्री के बीच वाले एंगल्स के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर
एंगल्स की वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली 0 डिग्री हो जाए या फिर एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाए, तो उस केस में आपका किस तरह का रिलेशन हम लोग को मिलेंगे। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में उसका वीडियो लेक्चर जो है वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो उसके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस जो वीडियो है वो जाकर के देखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एंगल्स और फॉर स्टैंडर्ड एंगल, ओके। उसमें आपको बताया गया है कि एक्यूट एंगल्स के लिए हम लोग 30, 60, 45 के लिए, उसके बाद में वो 0 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। तो कुछ नोट पॉइंट जो वो आप लोग को यहाँ पे नोट करना है। पहला तो बात है आपको नोट करना है कि जो भी हम लोग यहाँ पे रिलेशन देखे हैं वो किसके लिए देखे हैं, तो एक्यूट एंगल्स के लिए, दैट मीन्स एंगल्स लाइंग बिटवीन एंगल्स लाइंग बिटवीन 0 डिग्री एंड 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री टू 90 डिग्री एज वेल एज एग्जैक्टली 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो यहाँ पे बच्चे tan 0 की वैल्यू हमने क्या देखा था 0, तो यहाँ पे cot 90 क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है, cot 90 भी आपका 0 हो गया था। तो सिमिलरली जो आपका sec 0 की वैल्यू हम लोग 1 देख रहे थे, तो cosec 90 डिग्री आपका 1 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमने ये देखा था कि sec 90 डिग्री में sec 90 डिग्री cos 90 डिग्री कितना था 0 था, तो उसका रेसिप्रोकल sec होता है तो वो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, दैट मींस अनडिफाइंड हो जाएगा। तो sec 90 डिग्री cosec 0 डिग्री, देखिए sin 0 डिग्री कितना आया था 0, तो sin 0 डिग्री 0 आया, अब उसका रेसिप्रोकल cosec होता है, तो cosec 0 डिग्री कितना हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। tan 90 डिग्री, अब tan 90 डिग्री कितना था, तो tan 90 डिग्री तो खुद इनफाइनाइट, दैट मींस अनडिफाइंड, ओके। अब उसके बाद cot 0 डिग्री, tan 0 0 थे, उसका रेसिप्रोकल cot होता है, तो cot 0 डिग्री अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये जो आपके 4 टी रेशियोस आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चे, sec 90 डिग्री, cosec 0 डिग्री, tan 90 डिग्री एंड cot 0 डिग्री, ये आपका 2 0 है और ये 2 आपका 90 है, sec tan 90 डिग्री, cosec 0 एंड cot 0, ये आपके जो 4 रेशियोस हैं वो आपके अनडिफाइंड है, मींस यहाँ पे डिफाइंड नहीं हुआ। लेकिन ये जो है वो आपका tan 0 0 हुए, cot 90 भी आपके 0 हो जाएंगे। देखो यहाँ पे cot 90 नहीं, यहाँ पे cot 0 है। इस केस में sec 0 1 है और cosec 90 आपका 1 है, लेकिन यहाँ पे cosec 0 है, ठीक है, यहाँ पे sec 90 है। तो ये जो है वो बच्चों आप लोग को ध्यान में रखना है, और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आई होप 1 मार्क्स में या फिर ब्लैंक्स में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान में रखना होता है, और बिल्कुल ध्यान में रखे बच्चे, तभी जो है वो आप अच्छे से ग्रैब कर पाओगे, अच्छे से जो है वो आप स्कोर कर पाओगे, ठीक है बच्चे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हम लोग को इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये 2 क्वेश्चन है, मैं सिंपल सा क्वेश्चन लिया हूं, ओके। तो इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कितनी आएगी इसके आंसर। तो ये जो क्वेश्चन बच्चे, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू कंप्लीमेंट्री एंगल्स, टी रेशियोज फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसके फॉर्मूलाज जो हम लोग देख रहे हैं, ओके, हम लोग इनका यूज करेंगे। दैट मींस देखो यहाँ पे sin 41 अपॉन cos 49 है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि sin की जो रिलेशन है वो cos में होती है, तो हमें या तो sin को चेंज कर दे या तो cos को चेंज कर दे, दोनों में से हम किसी को एक को चेंज कर सकते हैं। अगर हम चेंज कर दें तो हम sin को चेंज करते हैं, तो sin 41 डिग्री इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं बच्चे, तो sin 41 डिग्री इक्वल्स टू कंप्लीमेंट्री एंगल के केस में 90 माइनस 49 लिख सकते हैं, राइट और नॉट। और यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे cos 49 डिग्री। तो यहाँ पे cos 49, अब हम लोग के पास कितना आ गया, ऊपर में आ गए cos 49 डिग्री, दैट मींस न्यूमरेटर्स में आ गए cos 49 डिग्री एंड डिनोमिनेटर्स में भी आपके cos 49 डिग्री, ये कट करके आपका कैंसिल होकर के आ गया कितने 1 से इसका आ गया 1। अब ठीक उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन को देखिए आप, cos 53 डिग्री है एंड sin 37 डिग्री है, तो हम इन दोनों में से किसी को चेंज कर सकते हैं, ओके। तो मैं यहाँ पे cos को ही चेंज करता हूँ, तो cos 53 डिग्री को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो cos 53 डिग्री को हम लोग लिखेंगे 90 माइनस 37। देखो 90 में से 30 जो है वो चला जाएगा, तो आपका कितना 53 आएगा। अब cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना होता है sin थीटा, तो sin 37 डिग्री आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो हम लोग इसके जगह पे लिख सकते हैं, देखो आप यहाँ पे हम कितना लिख सकते हैं sin 37, दैट मींस cos 53 डिग्री इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं sin 37। मैंने आपको बताया कि cos जो है वो आपके sin के इक्वल हो सकता है, लेकिन कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन क्या है, तो आपका कंप्लीमेंट्री एंगल, गॉट इट। तो यहाँ पे जो है
आपके साइन 37 डिग्री माइनस साइन 37 डिग्री आ गया। तो ये आपका कैंसिल हो गया, कितना आएगा बच्चे 0। तो ये जो आपके सिंपल से क्वेश्चन मैंने दिए थे, इससे जुड़े हुए कई सारे, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन से बच्चे आप लोग बुक्स में एनसीईआरटी बुक्स को बिल्कुल फॉलो कीजिए। ओके, किसी भी तरह का डाउट है, सजेशन है बच्चे, आप लोग बिल्कुल कमेंट किया कीजिए। और कुछ मेल वगैरह करना है या फिर मैसेज करना है तो उसका भी जो है वो आपका लिंक और मेल आईडी आपको दिया हुआ है, तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। So now we have another question, dear student, question number 2. If sec 5a equals to cosec a plus 30 degree, so find the value of a. और यहाँ पे कंडीशन आपको दिया हुआ है कि जो ये 5a है वो आपका एक्यूट एंगल्स है। ओके, 5a आपका दैट मींस 90 डिग्री से ज्यादा नहीं है 5a का मतलब, ये 5a जो है वो आपका एक्यूट एंगल्स में ही आ रहा है। ओके, सो डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है वो आपका 2015 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सीबीएसई बोर्ड ने 2015 में क्वेश्चन पूछा था। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन है वो बेसिकली आपको 1 मार्क्स में देखने को मिलते हैं। तो हम लोग जो है बच्चे या तो हम इनको चेंज कर सकते हैं या तो फिर हम लोग इनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हमें इसको चेंज करना अच्छा रहेगा, आसान रहेगा, लेकिन आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं इनको चेंज कर रहा हूँ। तो सेक 5a को हम लोग कितना लिख सकते हैं बच्चे, तो सेक 5a को हम लिखेंगे, सेक 5a को हम लोग लिख सकते हैं आपका कॉसेक 90 डिग्री माइनस 5, राइट और नॉट। देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कितना, सेक थीटा। तो सेक 5 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 5, क्योंकि 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू हम सेक 5 लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो रिलेशन आ गया बच्चों वो क्या आ गया, अब हमारे पास रिलेशन है cosec 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 5a इक्वल्स टू cosec a प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ पे एक रिलेशन समझेंगे बच्चों आप लोग। एक रिलेशन ये है, इफ sin a इक्वल्स टू sin b, कुछ इस तरह का रिलेशन अगर आएगा तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल्स टू b। Okay, if you have got tan a equals to tan b, so in this case you can write a equals to b. Similarly, sec a equals to sec b, so you can also write a equals to b. In all the cases, सारे केसेस में ऐसा आप लिख सकते हैं। तो हम लोग बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं कि cosec a अगर मैं इनको पूरा मानू cosec x मानू और इनको हम cosec y मानू तो x इक्वल्स टू y हो जाएगा। दैट मींस यहाँ पर लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 5a इज इक्वल्स टू a प्लस 30। अब तो एक सिंपल सा इक्वेशन हो गया है ना, लिनियर इक्वेशन बन गया, केवल कहानी आ गई। तो यहाँ पे हम लोग 90 माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू a प्लस 5a लिखेंगे। तो यहाँ पे 60 इक्वल्स टू कितना आ गया 6a। सो a इक्वल्स टू कितना आपके आ गए 60 अपॉन 6, दैट विल बी 10 डिग्री। ओके, देख लो आप यहाँ पे 90 ये 30 था, इधर चला आया तो आपका 60 आ जाएगा। फिर ये माइनस में है तो ये प्लस में जाएगा तो 6 से हो जाएगा, तो 6 से 10, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 10 डिग्री। तो ये जो है वो बच्चे आप लोगों को वैल्यू निकालने थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद अगर आया बच्चे तो प्लीज जो है आप लोग शेयर जरूर किया कीजिए, और ये जो हमारा एफर्ट है आप अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। आज के लिए बच्चों इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।